Hello, good morning, Namaskar, Jai Hind, and welcome back to Yoda Defense Academy. I hope you all are doing well. Today we are teaching that is time and tense, and this is the second class you can say where I am just going to teach you. I'm going to make you understand the types of tenses. Here at number one, we taught you that is present tense. Number two, that was the past tense, and number third, that's the future tense. All right. Each and everyone has a similar part. You can say if you talk about present, the first type is simple. Also, the first type of past tense, that's simple, and future tense, it has the first type as the form of simple. That's why you can say the first type of each and every tense will be here. That's the simple present tense. Here, simple past tense, and there, that's the simple future tense. Similarly, you can say the common part, each and every one, that's the number two, continuous, and number third, that's the perfect, and number four, that's the perfect continuous. All right. So this is the second class. You have to attend the class from very basic. I had made you understand in previous class that was time and tense, and it was a basic class that how tense emerged from the time. What are the differences between time and tense? I had given some examples on that. All right, I had told you that there is a great connection between tense and the verb, so you have to understand all these things for a smooth conduction of the class. Okay, so now let's see that अगर हम बात करें तो नंबर वन पे हम किसकी बात करेंगे? हम बात करना चाहेंगे, we would like to talk about that's the simple present tense. Okay, so put the title, that's the simple present tense. Simple present tense. All right, you know that we are not going to give you the Hindi recognition. All right, we are not going to give you the Hindi recognition. You'll say, why sir you're not going to give? Because in the school we used to study, maybe that you might have studied in your school, that was your teacher might have taught you in Hindi, ta hu, ti hu, and the words that they have. But this is not important in competitive classes because they are not going to ask you the translation. All right, suppose if it was the syllabus that they are going to ask you some kind of translation, then the topic must have be working for you. ये टॉपिक बहुत ज्यादा आपके लिए यूजफुल होता है, ये ट्रिक आपके लिए यूजफुल होता है, बट वो ट्रांसलेशन अब नहीं पूछने वाले हैं. वो क्या पूछने वाले हैं? तो आपसे पूछने वाले हैं कि मतलब बताओ इसमें क्या सेंटेंस में मिस्टेक है, या सिमिलरली क्या फिल इन द ब्लैंक. दो ही टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे आ सकते हैं. या तो एक ऐसे कह लो कि बताओ कौन सा टेंस है ना, बस वही है. बट ये तो नहीं पूछेंगे ट्रांसलेशन बताओ इसका ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश. दे आर नॉट गोइंग टू आस्क सच अ क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन. ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं उस आधार पे भी क्या करना है, पढ़ने के लिए सीखना है. तो देखो सबसे पहले ये तो मैंने बता दिया, लेकिन मैं आपको क्या बताऊंगा, इंग्लिश रिकॉग्निशन बताऊंगा कि आप एक सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे पहचान सकते हो. That's the point. But first of all, here when you come, then we have to learn to create the formula. That's very important. Yes or no? Yes or no? The formula is more important, na? And is I know that you might have by hearted all the formulas. सब फॉर्मूला को याद करते हैं क्या? लेकिन याद नहीं करना. मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि बहुत ही अच्छे माध्यम से, बहुत ही सिंपल ट्रिक से आप सीख जाएंगे. देखिए, कोई भी फॉर्मूला बनाना, इफ यू वांट टू क्रिएट एनी फॉर्मूला इन टेंसेस, वी हैव 12 टेंसेस. यस और नो? Three main structures are there, and each structure has 4 types. Then in total you can say we have 12 tenses. So what happens here, you can see that if you put here then subject, then helping verb, main verb, and this will be followed by just an object. Okay, so here what you are going to get, यहाँ पे हम बात करें सिमिलरली, तो यहाँ पे देखो क्या है, हमने से स्टार्ट किया, दैट इज व्हाट, यहाँ पे हमने स्टार्ट किया सब्जेक्ट, यहाँ पे हमने क्या डाला, ऑब्जेक्ट. अब कौन सा टेंस है? टेंस कौन सा है? पहला टेंस है. पहला टेंस है ना, तो पहला टेंस के लिए पहला वर्ब लगाएंगे. अब मान के चलो एग्जांपल के लिए आपकी एक फ्रेंड आई आपके हैप्पी बर्थडे पे,
ठीक है, तो आपने उसको, आपके घर वाले नहीं जानते, तो उसको रिसीव करने के लिए बाहर कौन निकलेगा? Will go out to receive that girl. You will go because you know that girl. अगर आपने उसके रिसीव किया तो बाय कौन बोलेगा? आपकी, आपके फैमिली वाले, मतलब बाहर छोड़ने कौन आएंगे? आप आओगे ना। हाँ, तो रिसीव भी आपने किया, छोड़ोगे आप, यानी कि हाई वर्ब है, ये बाय वर्ब है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हाई वर्ब प्लस, सॉरी, हाई वर्ब और क्या है, बाय वर्ब प्लस क्या है, ऑब्जेक्ट लगाते हैं, ये फॉर्मूला। ठीक है, इसको हाई वर्ब क्यों बोले? क्योंकि ये स्टार्ट में आया ना, आपने स्टार्ट में आया तो आपने हाई बोला। ये एंड वाला वर्ब है, तो एंड में हम लोग क्या बोलते हैं? बाय बोलते हैं। तो इसलिए मैंने बोला सब्जेक्ट प्लस हाई और बाय, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पे क्या है, जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो जनरली नेगेटिव हम क्या लगाते हैं? नॉट लगाते हैं। यस सुनो, मुझे बताना। ऑलराइट, देखो यहाँ पे हमने क्या किया, सब्जेक्ट लगाया। अब इसके लिए मैं क्या लगाऊंगा? डू लगाऊंगा। ठीक है, ये अपने लिए क्या भेजेगा? डज भेजेगा। प्लस क्या है? नॉट। उसके बाद क्या आएगा आपका? V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये सुनो, अब एक बात मैं आप ही से पूछता हूं, मुझे बताओ आप कि यहाँ पे था V5, यहाँ पे क्या था? देख सकते हो V5, जबकि यहाँ पे हो गया V1, क्यों? वही पूछने वाले थे, हम ही पूछ लिए। नहीं, कैसा जुल्म है? इस जुल्म भरी दुनिया में कैसे आदमी जी? बताओ मुझे, कुछ आइडिया है कि मैं बता दूं? देखिए क्या, मान के चलते हैं एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक वर्ब है यहाँ पे गो, ठीक है, तो इसका V5 क्या होगा बताना? गोज होगा या सोनो? ईमानदारी से मुझे बताना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इस गो को हमने यहाँ पे गोज किया। अब देखो यहाँ पे इसके लिए ये आया डू, या सोनो हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और इस डू को हमने डज बनाया, तो यहाँ का यस कहाँ आ गया? यहाँ पे आ गया। ओके, देन हियर गो, तो गो V1। अब दो बार लिखेंगे, इतना तो पागल है नहीं। ये सुनो, जैसे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे एग्जांपल मैंने बोला ही गोज टू पटना, यहीं पे मैं एग्जांपल देता हूँ, फिर मैं मिटा दूंगा, खाली समझाने के लिए। हमने क्या बोला? ही गोज टू पटना। नेगेटिव बनाऊंगा, मैंने नेगेटिव क्या बनाना? ही डज नॉट गो टू पटना। And the tense is very important to be learned out, because if you have better idea, if you have better clutch on tense, then definitely you will understand the voice and the narration। बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा, क्योंकि जब वॉइस की बात करते हैं तो 50% उसमें टेंस होता है, जब नरेशन की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है वहां पे टेंस का। अगर टेंस नहीं सीख पाओगे दोनों में, आपका कभी भी बेस्ट नहीं हो पाएगा। तो देखो यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, क्या देख सकते हो, यहाँ पे क्या गोल जो था हमने यहाँ पे डज लगा दिया, तो इसके लिए भी V1 आ गया। ये सुनो, ठीक है, तो ये लोग बोलते हैं कि नियम है, बट नियम नहीं। अब सामने में देख सकते हो, है ना, किसी में भी देख सकते हो आप लगा के, आपको समझ में आ जाएगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे क्या? इंटरोगेटिव। जो किसी का भी इंटरोगेटिव बनाओगे, हालांकि हम एक यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं, हम सबका आपको इंटरोगेटिव बताने वाले नहीं है, ठीक है। फर्स्ट मैं बता देता हूं, इंटरोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन बनाने के दो ही फॉर्मेट, या तो WH लगाओ, जो नीचे में देखिए WH इंटरोगेटिव है, या तो क्या कर दो भाई, हेल्पिंग वर्ब जो है, हेल्पिंग वर्ब को आउट कर दो। ऑलराइट, हेल्पिंग वर्ब को क्या कर देना? आपको आउट कर देना। जैसे यहाँ पे मुझे बनाना एग्जांपल के लिए, तो मैं कैसे बनाऊंगा? लेट्स सी दैट। जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है? डू और डज है, यस और नो। तो हमने क्या किया भाई, डू डज को हमने कर दिया आउट, हमने लगा दिया यहाँ पे सब्जेक्ट। कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद हमने क्या लगा दिया? हमने लगा दिया डू डज, हमने लगा दिया सब्जेक्ट, उसके बाद मैं लगा दूंगा V1 प्लस ऑब्जेक्ट विद अ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव में जाएंगे, हम क्या कर देंगे? यहाँ पे लगा देंगे डू, यहाँ पे लगा देंगे हम क्या बोलिए, डज, प्लस लगा देंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लगा देंगे नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन। हाँ यार, ठीक है, WH बनाना है। एक लगा दो भाई WH का कोई वर्ड, हमने लगा दिया वेन, मान के चलो वेन, प्लस हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो INT वाला फॉर्मूला यहाँ पे जो दिख रहा है ना, उसको ऐड कर देंगे।
अगर मुझे WHINT प्लस NEG बनाना है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, वेन को ऐड कर दिया हमने, यस और नो, कोई दिक्कत की बात होनी नहीं चाहिए। और मैंने यहाँ पे क्या देखा, INT प्लस NEG का ऑलरेडी फॉर्मूला यहाँ पे मेरे पास बना है, इसको ऐड। अब WH में कोई भी वर्ड हो सकता है, आपको पता है, वो आपका सेंटेंस के कंपैटिबिलिटी के अकॉर्डिंग लगना चाहिए। जैसे हम बोलेंगे व्हाट आर यू गोइंग, ये कंपैटिबल है सेंटेंस। व्हाट आर यू गोइंग, नो। क्या सही है इसके लिए, व्हेन आर यू गोइंग, तुम कब जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो, ये सब सेंटेंस सही है। तो कंपैटिबल होना चाहिए जब आप WH लगाते हो। ऑलराइट, कम ऑन, कॉपी इट आउट। What's the time right now? Let me know. 11:03. Okay. मुझे जल्दी जाना है। जल्दी जाना मतलब? इसके बाद हम क्लास नहीं करेंगे नेक्स्ट क्लास। हाँ हाँ ठीक है, मतलब आज तो मतलब हम लोग 11:30 तक पढ़ सकते हैं ना? हाँ ठीक है, ओके। Because I was absent for 2 days. I was at home. I think one day, na? Day before yesterday it was holiday. No, on Monday. On Monday it was holiday. No. Tuesday and Wednesday it was one class. I mean that I have left 2 classes. Okay, not an issue. I'll be managing. Done. Go on. And you have to create these structures at your fair copy. Sorry, in your fair copy. I'll be checking out, and I've just given a day for checking your copy. Yeah, on Friday. On Friday, you have to keep it with you. Come on. Now is the time to understand what's the thing is there, that where I have to put that's V1 and where I have to put that's V5. दो चीजें यहाँ पे जानना है, एक हमें V1 कहाँ लगाना है और एक हमें क्या करना है, V5 कहाँ लगाना है। ये दो चीजों को हमें समझना है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि V1 जो है, ये V1 है क्या। तो देखो, V1 जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, ये प्लूरल होता है। ये क्या होता है, प्लूरल होता है। और V5 क्या होता है, सिंगुलर होता है। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन मैंने बताया था आपको। मैं थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए मैं आपको रिवाइज करा दूंगा तो आपको समझ में आएगा कि मैंने बताया था कि कब क्या होता है। वी हैव द नाउन एट द फर्स्ट हैंड, वी हैव द नाउन ऑन द अदर हैंड दैट्स द वर्ब। देखो अब क्या होता है। देखो, जब आप नाउन में ना क्या करते हो, 1 सेकेंड आप थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे तो यहाँ पे नाउन में हम क्या करते हैं, जब एस लगाते हैं ना, ठीक है, ये पहले से सिंगुलर होता है, और जब एस लगाते हैं तो ये क्या बनता है, आपका प्लूरल बनता है। वहीं क्या वर्ब जो होता है पहले से प्लूरल होता है। और इसमें हम क्या करते हैं, एस या ईएस बोल लो आप, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब एस या ईएस ऐड करते हैं तो ये आपका बनता है सिंगुलर, उल्टा होता है। ये याद रखोगे। अब नाउन और क्या है, वर्ब के बीच में क्या है, आपका जीजा और क्या बोलते हैं, फूफा का संबंध है। नहीं, जीजा फूफा मत बोलो आप, ये साले साहब और फूफा, ये जीजा जी का संबंध है। दोनों एक दूसरे से गुस्साए रहते हैं, देखना आप हमेशा, है ना। शादी में 2 ही लोग नाराज होते हैं, एक या तो फूफा जी या तो जीजा जी, समझ रहे ना। हाँ, दोनों उस दिन क्या होते हैं, आपका प्रधानमंत्री की भूमिका में होते हैं। समझिए, कुछ भी वो बोल रहे हैं, अगर काम नहीं हुआ
गुस्सा आ जाता है, हम गाड़ी निकाल रहे हम जा रहे हैं वापस, देखिए क्या। तो यहाँ पे हमने क्या किया, मान के चलो एग्जाम्पल के लिए हमने लगाया एक बुक, मैंने वर्ड लिया। अब बुक में मैं क्या लगा क्या है? जी बिल्कुल, उनका बनता है ना, थोड़ा सा देखो एक्शन मोड में होता है ना, जिस दिन देखो मंत्री लोग शपथ लेते हैं एक्शन मोड में होता है ना, तो उसका एक्शन मोड में होते हैं वो। देखो यहाँ पे क्या है, बुक्स हो जाता है। यस सर, मुझे बताना। क्लियर, नॉट एन इशू, क्योंकि ये प्लूरल बन गया। लेकिन जैसे आप क्या करते हो, गो में जैसे आप लगा देते हो यस ना, ये सिंगुलर बन जाता है। ठीक है, ये सिंगुलर बन जाता है, यानी कि क्या बन जाएगा आपका, बोझ बन जाएगा। आप बोलोगे कैसे, एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, आपको समझ में आएगा। हाँ, वी गो हम लोग बोलते हैं ना। अब देखो नियम क्या कहता है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हैं। अगर ये सेंटेंस सही है तो इसका मतलब ये अगर प्लूरल है तो ये भी प्लूरल है। जो हमने क्या बोला, V1 आपका प्लूरल है। यहाँ पे क्या है, हम बोलते हैं क्या है, ही गोज या सी गोज, जो भी बोलना आपको, बोलते हैं कि नहीं। तो अगर ये सिंगुलर है तो ये सिंगुलर है, जिसकी वजह से मैंने बोला V5 क्या होता है, सिंगुलर। ठीक है, एक सवाल मैं और पूछूंगा अभी आपसे, जो बड़ा जेन्युइन सवाल होगा। क्या सवाल होगा? नथिंग, वी डोंट नो। देखो क्या, आई अब क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ V1 क्यों लगाते हैं? तो इसके साथ तो V5 लगना चाहिए। यस और नो? ठीक है, देखो मैं बताता हूँ। कभी कभी क्या होता है ना, एक आई और एक यू, ये वाला यू, ये दोनों जन्म से क्या होता है, देखते हो कई फैमिली में सब लोग सीधे साधे लोग हैं, लेकिन उसमें से एक क्या बहुत बड़ा डंकट निकल जाता है, पियंकड़। ना सब बहुत एकदम बढ़िया भक्ति करने वाले व्यक्ति हैं, मस्त वाले व्यक्ति, अच्छे से बात करने वाले व्यक्ति, कल्चरल जिसको लोग कहते हैं, कल्चर्ड, मैं कल्चरल नहीं बोलेंगे, कल्चर्ड लोग हैं। उनमें से एक क्या बहुत मतलब अलग निकल जाता है वो, मतलब जिसका कोई फैमिली एक्सेप्शन जिसको बोलते हैं। बस आई और वी जो है ना, वही है, सॉरी वी बोलते हैं, यू। ये जन्म से सिंगुलर होते हैं, ठीक है, ये जन्म बाय बर्थ क्या सिंगुलर, ये वाली की हम बात करें, ये तो प्लूरल ऑलरेडी, इसमें तो सोचना ही नहीं। तो ये हाँ, तो देखो मैंने बताया था आपको ना, एक दिन समझाया था मैंने, ये देखना पड़ेगा सेंटेंस में। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए बोला यू गो आउट, तो सबको भी बोलो, आपको ना मैंने बोला, तो आपको मैंने बोला तो कौन वाली बोला, मैंने ये वाली बोली। वो सेंटेंस में जब यूज करते तो पता चल जाता है। ठीक है, हम बोलेंगे, जैसे मान के मैंने अब एग्जांपल दिया, चलो मैं बोलूंगा नहीं, हम सिर्फ यहाँ पे लिख रहे हैं यू ऑल आर प्रेजेंट। अब बोलो कौन सा यू, आप ही बताओ मुझे, क्योंकि यहाँ पे ऑल मैंने लगा दिया, तो वो पता चल जाता है, सेंटेंस में देखो तो पता चलता है। तो ये देखो आई और जो यू आपका होता है ना, जो बाय बर्थ, बाय बर्थ क्या होते हैं, ये आपके सिंगुलर ही होते हैं, लेकिन बाय यूज ये प्लूरल कभी कभी एक्ट करते हैं, याद रखना इस बात को। बाय यूज क्या होते हैं, सिंगुलर ही होते हैं, क्योंकि आई में तो एक आदमी, यहाँ पे यू में तो तुम या आप एक ही आदमी। तो बाय क्या है, बाय नेचर या बाय बर्थ आप कह लो, ये सिंगुलर ही होते हैं, लेकिन क्या बाय यूज ये कभी कभी प्लूरल की तरह एक्ट करते हैं, कभी कभी सिंगुलर की तरह भी एक्ट करते हैं। कैसे, आप आई के साथ वाज लगाते हो ना, ये सुनो। तो यहाँ पे क्या है, अपना जो क्या बोलते हैं, अपना जो फैमिली मेंबर जो है उसके साथ आ जाता है वापस, कि भाई बहुत झगड़ा हुआ, अब चलो। हाँ, बोथ कैरेक्टर्स इट हैज, यू कैन से। ऑलराइट, तो यहाँ पे क्या है, यानी कि आप इसके साथ लगाओगे और सिंपली आप ये कह सकते हो कि जहां पे देखो, अब क्या है, इसके साथ हम क्या करना है, हमने V1 लगाना है, और जहां पे आप V1 लगाओगे ना, वहां पे नेगेटिव में आप डू नॉट लगाओगे। क्या लगाओगे? डू नॉट। अब इसी को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, डोंट बोलते हैं। क्लियर है? और जहां पे क्या है V5 लगाओगे, उसी का नेगेटिव में आप क्या लगाओगे, आप लगाओगे डज नॉट। और इसी डज नॉट को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं जी, इसी को कहते हैं हम डजंट। क्या कहते हैं? डजंट कहते हैं। ऑलराइट, आप डू नॉट लगाओ या डज नॉट लगाओ, उसके बाद क्या लगेगा, V1 लगेगा। ठीक है, कॉपी इट। डू यू हैव एनी डाउट? हाँ जी बिल्कुल। कहाँ पे? नहीं नहीं नहीं,
वो मैंने बोला, मैं तो यहाँ पे ये दिखाना चाहता हूँ, इसके बाद V1 लगेगा, बट ये मैं V5 के साथ हम डज नॉट लगाएंगे नेगेटिव, मैं ये कहना चाहता हूँ। V1 का नेगेटिव में डू नॉट लगाएंगे, लेकिन डू नॉट लगने के बाद या डज नॉट लगने के बाद आपने फॉर्मूला में नेगेटिव में देखो, कहीं V5 में लिखा है नेगेटिव का फॉर्मूला देखो, तो इसका मतलब क्या है कि आप नेगेटिव में मान के चलते हैं V1 के बाद आप डू नॉट लगाओगे, इसके बाद भी V1 लगेगा, आप V5 के नीचे क्या लगाओगे नेगेटिव में, डज नॉट लगाओगे, इसके बाद भी V1 ही लगेगा, मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि नेगेटिव वाले फॉर्मूला में कहीं भी आपको V5 नहीं दिखेगा। दैट्स माय मेन कंसर्न। कम देखो, अब इससे क्या करना है, हमें सेंटेंस क्रिएट करने के लिए सीखना है, बिकॉज सेंटेंस आप बनाने के लिए सीख जाओगे ना, तो डेफिनेटली इट विल बी वेरी मच यूजफुल टू यू। लेट्स नो हाउ वी कैन डू दैट। देखो, हमने अभी आपको बताया कि हमने कितने बनाने, हमने सेंटेंस जो बनाने वो 6 बनाने। कितने बनाने जल्दी बोलो। वी हैव टू क्रिएट द 6 टाइप ऑफ सेंटेंसेस। ऑलराइट, देखो जैसे मैं आपको एक दो जो प्रोनाउन उसमें बना के दिखा दूंगा, बाकी बात खुद से आपको बनाना है, ठीक है। देखो जैसे मैंने एक आई वाला बना देता हूं, क्योंकि आई वाला सेम का सेम पैटर्न फॉलो है दे तक। एक ही या सी से बना दूंगा, जिससे क्या ही सी इट नेम सेम पैटर्न को यहाँ पे फॉलो करते हैं। ये सुनो, देखो सबसे पहले मैं नेमिंग क्यों देता हूँ, सबसे पहले जो मुझे बनाना है, क्या बनाना, अफर्मेटिव बनाना है, ये सुनो। उसके बाद क्या बनाना मुझे, नेगेटिव बनाना है, देन आईएनटी दैट्स इंटरोगेटिव, देन इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, देन डब्ल्यूएच इंटरोगेटिव, ये सुनो, देन WH INT plus NEG. This is yes or no? Okay. Let's create from the they. जैसे हम बनाते हैं, ठीक है। हमने कहा दे के साथ क्या लगेगा, V1 लगेगा, yes or no? हमने कहा दे pluck the flower. ऑलराइट, अब यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म भी लगा सकते हो, डोंट, या क्या लगाओगे आप, डू नॉट लगाओगे, जो आपका मन, डोंट लगा सकते हो। हमने बोला दे डोंट, या डू नॉट बोलो, दे डोंट प्लक द फ्लावर, दे डोंट प्लक द फ्लावर। here मैं क्या बोलूंगा, डू दे, अच्छा यहाँ पे डू दे प्लक द फ्लावर, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यहां पे क्या होगा, डोंट दे प्लक द फ्लावर, ये सुनो, हियर
why do they pluck the flower? Then why don't they, na? why don't they pluck the flower? Yes or no? Copy it. Similarly you can say, यहाँ पे किससे किससे बना सकते हो? आई से बना सकते हो, बनाना है कॉपी में, फेव कॉपी बनाना है आपको, ठीक है? हाँ, अलग अलग वर्ब यूज करना ताकि आपका प्रैक्टिस ज्यादा बढ़ेगा ना, दैट्स द मेन पॉइंट। ज्यादा आप यूज टू हो जाओगे। और क्या था? दे था। सबसे दे से तो हमने बना ही दिया, बाकी बात इससे बनाना है, फेव कॉपी में होना चाहिए, क्योंकि जितना आप बनाओगे ना, जितना लिखोगे माइंड में टेंस उतना बैठ जाएगा आपका, दैट्स द मेन थिंग। ओके, ठीक है, देश हमने बना लिया। अब देखो सिमिलरिटी क्या है, हम लोग एक बनाना है, किससे बनाना है, इस पैटर्न में किसी से बनाना है, तो सारी पैटर्न यू विल डू दैट। देखो हमने क्या करना है, ही, शी, इट, नेम, किसी एक से बना देता हूं मैं, बोलोगे किससे बना दो, जिससे बोलोगे मैं उसी से बना दूंगा, इट से बना देता हूं, क्योंकि इट से क्या है, लोगों को समझ में नहीं आता कौन सा सब्जेक्ट हम लगा दें। क्या मैं सही बोल रहा हूं? इसलिए आपने इट से बोला मुझे बनाने के लिए, कि अगर फंसना है तो सभी को ही फंसाते हैं, मैं क्यों फंसू? देखो क्या, सबसे पहले क्या आप यहाँ पे आता है, अफर्मेटिव आता है, देन क्या आता है बताना मुझे, नेगेटिव आता है, अगेन व्हाट्स वी हैव, दैट इज आईएनटी, देन वी हैव आईएनटी प्लस एनईजी, देन वी हैव दैट इज व्हाट, WHINT, and again we have WHINT plus NEG, negative। ऑलराइट, देखो अगर बात छिड़ गई है तो मैं थोड़ा सा आपकी समस्या को और ज्यादा सॉल्व कर देना चाहूंगा, कि सबसे पहले ये आप समझ लो, साइड से लिख लेना, आप ईट लगाते कहाँ है। देखो ईट हम जो लगाते हैं सबसे पहले एनिमल के लिए लगाते हैं, हाँ, नॉन लिविंग के लिए लगाते हैं, कोई भी नॉन लिविंग हो उसके लिए लगाते हैं, और पता है न्यू बॉर्न बेबी के लिए भी लगाते हैं, न्यू बॉर्न बेबी। अब बोलोगे सर न्यू बॉर्न बेबी के लिए कैसे लगाएंगे, क्योंकि वो छोटा बच्चा है। देखो व्हेन द बेबी इज देयर द जेंडर इज नॉट कंफर्म्ड। आप देखोगे कोई छोटा बच्चा है ना, तो पता नहीं चलता लड़का है कि लड़की है, दोनों सेम दिखता है छोटा बच्चा को, न्यू बॉर्न। सिमिलरली लो, तो इसलिए इसके लिए हम क्या लगाते हैं, ईट हम यहाँ पे लगा सकते हैं। क्लियर बात? यस और नो? ये है, इतना सोचने की क्या बात, लगाते हैं, क्यों बोला? देखो ईट में बोलूंगा, ईट मैंने बोला, ईट ईट्स, यहाँ पे ध्यान देना थोड़ा सा आप, देखो यहीं पे लोग धोखा खा जाते हैं। मैंने क्या बोला, इट ईट्स ग्रास। अब क्या लगाओगे, इसके साथ लगाओगे इट के साथ डजंट, यस और नो? क्या लगाओगे? हाँ, डज नॉट या डजंट लगाओगे। इट डजंट ईट्स नहीं होगा, ईट हो जाएगा, क्योंकि मैंने पहले बता दिया, डू लगाओ या डज लगाओ, उसके बाद क्या लगना है, V1 लगना है, यही बात याद रखना। इट डजंट क्या हो जाएगा, इट दी ग्रास। यस, यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ मुझे, डज इट
यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भूलना नहीं है. Doesn't it eat the question mark? Why does it question mark? ये ध्यान दो पहले, उसके बाद लिखना आप. Why doesn't it? क्या हो जाएगा? Why doesn't it कॉपी कर लीजिए आप. What's the time now? Time 23. Yes. Done. Okay. Now we shall be talking about some special rules. All right. कुछ हम special rules बात करेंगे. उससे पहले एक चीज मुझे माइंड में आया. देखो ये सब जितने भी है ना, सब एक्शन वाले फॉर्मूला है. कौन सा फॉर्मूला बताना मुझे? एक्शन. सब में आपको कुछ ना कुछ काम दिखेगा. यस. बट देखो एक जो फॉर्मूला होता है दैट इज नॉन एक्शन. एक जो होता है क्या होता है? नॉन एक्शन फॉर्मूला होता है. नॉन एक्शन फॉर्मूला. अब नॉन एक्शन फॉर्मूला का मतलब क्या होता है? इसमें किसी भी टाइप का आपको एक्शन यहां पे नहीं दिखता है. वर्ब नहीं होगा. वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा. उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव होगा यहाँ पे. जैसे देखो आप कैसे, लेट्स सी दैट. मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा. जैसे यहाँ पे क्या दिखना है आपको? सब्जेक्ट दिखना है. अगेन क्या है? सॉरी अगेन मैं बोलता हूँ. And it will be followed by the 3 helping verbs you can see. ठीक है. Is a mark. Then क्या होगा? यहाँ पे आपको दिखेगा noun या adjective. आप नाउन पता ही क्या है, इसलिए मैं बेसिक से क्लास स्टार्ट करता हूँ ताकि बीच में कोई पूछे ना हमसे कि सर नाउन क्या है, एडजेक्टिव पहले बता दिया आपको. क्लियर बात? देखो जैसे एग्जांपल के लिए इसमें क्या होता है आपका, ये नॉन एक्शन होता है. बोलोगे क्यों? क्योंकि इसमें देखो एक्शन कहीं दिख रहा है आपको, मीन वर्ब का कहीं पे कोई भी जगह नहीं होता. जैसे एग्जांपल के लिए हमने कहा फॉर एग्जांपल्स. फॉर क्या है? हमने कहा एग्जांपल्स. हमने कहा आपसे रमन इज एन इंटेलिजेंट बॉय. आप कहां से आते हो? अच्छा अच्छा अच्छा. क्या फैमिली के साथ रहते हो आप? फैमिली के साथ? वेयर आर यू फ्रॉम? Oh, Hazaribagh. Okay, okay, okay. Yes. You are here only for the. Yes, this one. And are you in which school you are? Gosnell College. Okay, okay. And schooling? From where you have done your schooling? Okay, that's the CBSE board school. Okay, come on. देखो यहाँ पे क्या है? मैंने बोला the sun is hot. ये सुनो. देखो इसमें क्या दिखेगा आपका? यहाँ पे एडजेक्टिव दिखेगा. यहाँ पे एडजेक्टिव है फॉलोड बाय नाउन. ओके, मैं और एग्जांपल दे देता हूँ. मैं बोलूंगा the earth is round. वैसे राउंड है नहीं बट लोग बोल देते हैं. चलो